Let me know when the start recording icon will be visible to you, okay? Because it's not visible on my side. Maybe the recording might have already started, but Teams is not showing anything. Okay. So, good morning again. We will begin our lecture 30 on graphs and their applications. So in the previous lecture, we have talked about Kruskal's algorithm, and we'll be talking on the shortest path algorithms, and more specifically, we'll discuss today the Dijkstra's algorithm. So finding shortest path actually is not a single problem, but a family of problems. These problems can be divided into three types of categories. First is called as a source sink shortest path. Suppose if you are given a graph, so this particular problem, that is source and sink. So one source node will be given and one sink node, that is the destination node, will be given. So you are supposed to calculate the shortest path between vertex u and vertex v. So find shortest path from single vertex u to vertex v. Okay. So this is called as source and this is called as sink. So this is from a single node or a single vertex to another single vertex. Second type is single source shortest path. Now this single source shortest path means you have to calculate the shortest path that begin from u to every other node. u से शुरू अगर करते हैं तो बाकी सब नोड के साथ क्या मिनिमम पाथ होगा. ओके, सो सिंगल सोर्स होगा, तो यहां पर लिखता हूं मैं सिंगल सोर्स होगा और मल्टीपल डेस्टिनेशंस होंगे. अज्यूम करो कि आपके पास में एक ग्राफ है जिसमें 5 नोड्स है और सपोज ए सोर्स है, तो आपको पाथ्स निकालने हैं ए से बी तक, ए से सी तक, ए से डी तक और ए से ई तक, यानी सब शॉर्टेस्ट पाथ्स पॉसिबल बिटवीन वन सिंगल सोर्स एंड मल्टीपल डेस्टिनेशन. ठीक है, समझ में आ गया ये? इसका मतलब होता है जलगांव से चालीसगांव, जलगांव से भुसावल, जलगांव से चोपड़ा, जलगांव से पटना, जो भी है सिंगल सोर्स होगा जलगांव, और बाकी सब प्लेसेस उनका डिस्टेंस मिनिमम क्या होगा वो ढूंढना है. और थर्ड फैमिली ऑफ प्रॉब्लम्स इज ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ. ऑल पेयर का मतलब क्या होता है कि सपोज जलगांव होगा, चोपड़ा होगा, रावेर होगा, मुक्ताईनगर होगा, ये कुछ गांव के नाम है. तो जलगांव से चोपड़ा निकालना है, जलगांव से रावेर निकालना है, जलगांव से मुक्ताईनगर का शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है. उसी तरीके चोपड़ा से जलगांव, चोपड़ा से रावेर, चोपड़ा से मुक्ताईनगर. उसी तरीके से फिर रावेर से जलगांव, रावेर से चोपड़ा, रावेर से मुक्ताईनगर, और फिर मुक्ताईनगर से रावेर, मुक्ताईनगर से चोपड़ा, मुक्ताईनगर से ये. तो जितने पॉसिबल पाथ्स है वो सब निकालने हैं आपको. ओके, आप बोलोगे जलगांव से चोपड़ा जो रास्ता है वही तो चोपड़ा से जलगांव होगा, और कभी कभी क्या होता है वन वे होता है, तो दूसरे रास्ते से जाना पड़ता है. हो सकता है कि वो थोड़ा नजदीक वाला हो, आधे किलोमीटर से कम ज्यादा भी हो सकता है. So hope you have found you have understood these three type of problems. Am I audible? Yes, sir. Yes, तिघ प्रॉब्लेम sir. समजतात का? Yes, तिघ sir. प्रॉब्लेम कसे आहेत तर? हो सर. Okay. हो सर. For single for source sink shortest path, you can use the Dijkstra algorithm. For single shortest path, there also you can use the Dijkstra algorithm. All pair shortest path, we use what is called as the Floyd-Warshall algorithm.
Okay, and here an alternative Dijkstra is Bellman-Ford algorithm, but we are not going to see that algorithm. I'm just telling you the name of that algorithm. Okay. So Dijkstra's algorithm finds the shortest path between a given node called as the source node and all other nodes in a graph. ये source होगा तो उससे बाकी सब नोड तक कौन सा पाथ सबसे कम वैल्यू वाला होगा वो ढूंढ के निकालता है Dijkstra's algorithm. This algorithm uses the weights of the edges to find a path that minimizes the total distance between the source node and all other nodes. Dijkstra's algorithm की properties क्या है? It is a iterative and greedy algorithm. Okay, it is iterative and greedy algorithm. Iterative मतलब not recursive. ये recursive नहीं है, iterative है. It works both on directed and undirected graph. चलो अच्छी बात है, डायरेक्टेड भी काम करता है, अनडायरेक्टेड भी काम करता है. It gives the shortest path from a single source to multiple destination. इसलिए इसको सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम भी बोला जाता है. Dijkstra's एल्गोरिथम को वर्क करने के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन होती है? तो सबसे पहले होता है कि वो जो ग्राफ है ना वो कनेक्टेड होना चाहिए. दूसरा, सेल्फ लूप और पैरेलल एजेस आपको हटा देने पड़ेंगे. तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी एज को नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए. फॉर इंस्टेंस अगर कोई ग्राफ ऐसा है तो आप यहाँ पर वेट्स डालते हो ना, ये 5, 6, -3, 2, 1, 6, तो ऐसा माइनस वाला वैल्यू नहीं चलेगा. एंड फाइनल, द ग्राफ शुड बी अ वेटेड ग्राफ. ग्राफ में वेट्स होनी चाहिए पर नेगेटिव वेट्स नहीं होनी चाहिए. ओके, तो ये अंडरस्टूड है, ये अंडरस्टूड है. ये हम लोगों ने अभी देखा कि वो नेगेटिव एजेस नहीं होनी चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट है वेटेड ग्राफ. अगर ग्राफ में वेट नहीं है तो Dijkstra's एल्गोरिथम वर्क ही नहीं कर पाएगा क्योंकि किलोमीटर दिए नहीं है और फिर हम कैसे निकाल सकते हैं कौन सी जगह से कौन सी जगह पे कम डिस्टेंस है. तो डिस्टेंस निकालने के लिए वेट होना जरूरी है. सो दिस इज द एल्गोरिथम, Dijkstra's शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम. हम ये एल्गोरिथम के जो सारे स्टेप्स है वन बाय वन हम ये देखेंगे एग्जांपल के साथ में. ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 स्टेप इज इटरेशन. एक व्हाइल लूप है जिसको हम लोगों को इटरेट करना पड़ेगा. और ये एक रिलैक्सेशन वाला एक कॉन्सेप्ट है जिसका यहाँ पर मैंने फॉर्मूला दिया है कि इस तरीके से आपको अपडेट करना है, रिलैक्सेशन करना है. आई विल विजिट दिस 2 स्लाइड्स, बट बिफोर दैट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ Dijkstra's algorithm depends on what data structure you are using. If you are using linear array for priority queue, then it is order of v square. So this is what we will be using. And then there are two approaches, binary heap and Fibonacci heap. So these are the time complexities. Space complexity is order of v square because this is you store this into a adjacency matrix. So it is order of v square. Drawbacks of Kruskal's algorithm is it does not work on graphs with negative edges. नेगेटिव एजेस के ग्राफ पर वो काम नहीं करता क्योंकि हम लोग यहाँ पर ग्रीडी टेक्निक यूज करते हैं. पर Bellman-Ford algorithm डायनामिक प्रोग्रामिंग यूज करता है. So Bellman-Ford algorithm uses dynamic programming approach and therefore is able to overcome the drawback of the Dijkstra's algorithm. तो आपको MCQ में पूछा जा सकता है कि what is the drawback of the Dijkstra's algorithm. तो ऑप्शंस में ऐसा होगा it calculates the shortest path from single source to multiple destination. अब ये तो ड्रॉबैक नहीं है. It works on directed and undirected weighted graph. ये भी ड्रॉबैक नहीं है. इसी तरीके से और एक तीसरा कुछ होगा और चौथा दिया जाएगा it does not work on graphs with negative edges. तो ये ड्रॉबैक हो गया. या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा which of the following और जिसमें ये आंसर हो कि it does not work on graphs with negative edges. Okay,
ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिदम इज यूज्ड टू ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ डिक्स्ट्रास एल्गोरिदम। ऑप्शन में बेलमैन फोर्ड, रदरफोर्ड एल्गोरिदम, प्रिम्स एल्गोरिदम, या और कुछ नाम दिया जाएगा, क्रुस्कल्स एल्गोरिदम। तो बेलमैन फोर्ड को आपको वहां पर टिक करना है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम यूजेस द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग अप्रोच। तो पहला होगा ग्रिडी, दूसरा होगा डायनेमिक, तीसरा और कुछ होगा, चौथा और कुछ होगा, हो सकता है तीसरा ऑप्शन आपको डाल दिया जाए डिवाइड एंड कॉन्कर। तो आपको करेक्ट सिलेक्ट करना है कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच यूज होता है या फिर डिक्स्ट्रास एल्गोरिदम यूजेस द फॉलोइंग अप्रोच। तो इट यूजेस द ग्रीडी अप्रोच। वो ग्रीडी अप्रोच जो है ना वो आपको सिलेक्ट करना है। ओके, तो एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, और जब हम लोग ये एग्जांपल देख रहे होंगे तभी हम लोग वो एल्गोरिदम भी उसके साथ में एग्जीक्यूट करेंगे। सो ये एक वेबसाइट check.com पे एक होमवर्क दिया था, वो होमवर्क वाला एक्सरसाइज हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। सो 1 2 3 4 5 6, so you have 6 vertices, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, 6 वर्टाइसेस दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। हाँ या ना बोलो, दिख रहा है ना, डायग्राम बन Yes, रहा है। sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. 1 से 4 और 4 से 1, 1 से 4 एज है और 4 से 1 तक एज है। उसका वेट है 10 और इसका वेट है 20। ओके, और 1 से एक एज जा रही है 3 पर, 1 से एक एज जा रही है 3 पर, एंड दैट इज हैविंग वेट 45। ओके, 1 से एक एज जाएगी 2 पे, 1 से एक एज जाएगी 2 पे और उसका वेट है 50, विद द वेट 50। अब 4 से जाएगा 5 पर विथ वेट 15, और एक आएगा 2 से 4 पे, एक एज आएगी 2 से 4 पर एंड द वेट इज 15 अगेन, ये इसका वेट है। ओके, एक 5 से 2 पे जा रही है एज और उसका वेट होगा 20। 2 से एक एज जाएगी 3 पे, 3 पर एक एज जा रही है और उसका वेट है 10। 5 से 3 पे जाएगा और 3 से 5 पे आएगा, 5 से 3 पे जाएगा और 3 से 5 पे आएगा, और इनके वेट से 35 और 30, ये है 35 और ये है 30। और 6 से एक एज आएगी 5 के ऊपर और उसका वेट है 3। आप ये कैलकुलेट करो, ये कितनी एजेस हो गई है, परफेक्टली देखो। 11. 11. किसी एज का ये तो छूट नहीं गया ना, वेट वगैरह सबको आगे वेट्स। Yes, sir. 1 Yes, 2 sir. 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ओके, इसमें और एक होता है कि हमारा स्टार्टिंग वर्टेक्स जो सोर्स होता है ना, क्योंकि सिंगल सोर्स, सो सोर्स वर्टेक्स इज, ये गिवन रहता है 1, सोर्स वर्टेक्स इज 1। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमें क्या आंसर निकालना है, ये देखो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है कि 1 से लेकर 2 तक का शॉर्टेस्ट पाथ। आप विजुअली बताओ तो कौन सा पाथ सबसे छोटा दिख रहा है आपको 1 से 2 तक.
ये 1 से 2 पे ये 50 है क्या शॉर्ट पाथ? नहीं, 1 to 3. नहीं, 1 से 4 1 तक and 4 से 2 1 तक. to 4. 1 1 से to 4 4. 10, 1 से 4, 1 4 से to 4. 2. 4 1 से 4 4, 2 से सर मतलब का कंटिन्यू. 1 से 2 तक शॉर्टेस्ट पाथ. हाँ, तो 1 to 4. हाँ, नहीं, 1 से 1 to 4, 4, 4 से 2, 4 हाँ, to 5 and 5 to 2. क्या वेट है? 10, 15, 45. 45. अभी ये जो ग्राफ है ये सिंपल है, इसलिए तो आपको इमीडिएटली दिख रहा है, राइट? मगर ऐसा सोचो जहाँ पे हजारों नोड्स होंगे तो ह्यूमन बींग्स के लिए भी वो डिफिकल्ट है, राइट? Yes. सो ये जो टेक्निक्स होती है, ये एल्गोरिथम जो होते हैं, ये मशीन्स पर एग्जीक्यूट होते हैं और वो फास्ट भी होते हैं बहुत. तो जैसे मैंने अभी बोला आपको कि 1 से लेकर 2 तक पाथ निकालना है, तो ये पाथ हमारा शॉर्टेस्ट पाथ निकला. ये पाथ हमको इग्नोर कर देना है, ठीक है? तो सबसे पहली स्टेप है कि एक डी, मैं इरेज कर देता हूं ये, क्योंकि हमको काफी जगह लगने वाली है. इरेज दिस. तो लेट अस नाउ गो टू द एल्गोरिथम. सो सबसे पहली स्टेप है initialize all distances to infinity. So we have a distance matrix, distance array. तो ये वो हमारा डिस्टेंस का एरे है. ये जो रो है ना, ये डिस्टेंस का एरे. तो इनिशियलाइज ऑल दिस एंट्रीज टू 0, इंफिनिटी. हमको सोर्स से बाकी सब का डिस्टेंस पता नहीं है, तो एक वैल्यू तो हमको चेंज करनी पड़ेगी, ये वाली, क्योंकि एल्गोरिथम में लिखा है सोर्स नोड डिस्टेंस टू 0. सोर्स नोड को 0 कर दो और बाकी सबको इन्फिनिटी कर दो. सोर्स नोड 1 है हमारा, सो 1 से लेकर 1 तक का डिस्टेंस तो 0 ही रहेगा, क्योंकि वहां से शुरू हो रहा है. और हमको इनिशियली मालूम नहीं है कि 1 से अगर हम लोग 2 को जाते हैं या 3 को जाते हैं तो क्या डिस्टेंस है, ये हमको मालूम नहीं है. तो वो मिनिमम डिस्टेंस हमको मालूम नहीं है, तो हम लोग इनिशियली क्या बोलते हैं, चलो भाई इन्फिनिटी है. ओके. तो क्या ये आपके दोनों स्टेप ध्यान में आ गई है, ये वाली और ये वाली? Yes, sir. ओके. अब इनिशियलाइज ऑल प्रीवियस, एक ये एरे है जिसको हम लोग नील को इनिशियलाइज करेंगे. तो ऐसा सोचो आप कि यहाँ पर ये नील है, ये नील है, ये नील है, ये बारीक लाइन मतलब नील है. ओके. बाद में पता चलेगा. ये एक एरे है जिसका नाम है PREV. ओके. जैसा डी है वैसा प्रीव है. तो ये डी में वैल्यूज है 0, इन्फिनिटी, 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 और प्रीव में वैल्यू है नील, 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 नील. ओके, क्लियर? तो थर्ड स्टेप हो गई. नाउ मार्क द सोर्स नोड एज सिलेक्टेड. तो या तो यहां मार्क कर दो या यहां मार्क कर दो. सिलेक्टेड, ये सिलेक्टेड हो गया. हाँ, यहाँ पे भी आप मार्क कर सकते हो, दिस इज सिलेक्टेड. सोर्स नोड को मार्क कर दिया. मेक सोर्स नोड एज करंट नोड. मेक दिस एज द करंट नोड. इसको करंट नोड कर दो, मतलब यहाँ पे 1 लिखो, ये करंट नोड. क्या वैल्यू है? 0. ये 0 है ना, ये यहाँ लिखा है, ये 1 करंट नोड हो गया. अब यहीं पे करंट नोड करेंगे, ये करंट नोड है. अब ये नया डी बनेगा. अब ये पुराना वाला डी है हमारा, अब हम लोग नया डी बनाएंगे यहाँ पर, और प्रीव्यू भी अपडेट होते जाएगा. ओके. सो हैव यू अंडरस्टूड दिस 5 स्टेप्स? Yes, sir.
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now we will go into this loop. ये लूप में जाएंगे. While there is unselected node, जब तक अनसिलेक्टेड नोड है. अब हमारे एग्जांपल में है कि नहीं बताओ, अनसिलेक्टेड नोड्स है कि नहीं? Yes. है ना. तो वन को ही सिलेक्ट किया हम लोगों ने, ये वन को सिलेक्ट किया है. ये देखो कितने अनसिलेक्टेड है, ये अनसिलेक्टेड है, ये है, ये है, ये है. आयो. तो काफी अनसिलेक्टेड नोड है हमारे पास में. तो जब तक अनसिलेक्टेड नोड है तब तक क्या करना है, ये दो स्टेप है. एक्सपांड ऑन करंट नोड एंड रिलैक्स द डिस्टेंस. ये अपडेट या रिलैक्स डिस्टेंसेस फॉर नेबर्स ऑफ करंट नोड. इसको रिलैक्सेशन भी बोलते हैं, रिलैक्सेशन. तो एक्सपांड ऑन करंट नोड. तो अभी ये एक्सपांड ऑन करंट नोड मतलब क्या देखते हैं. एंड अपडेट डिस्टेंसेस फॉर नेबर्स ऑफ करंट नोड. एक्सपांड करो, इसका मतलब ये वन से कहां कहां जा सकते हैं. एक्सपांड करो, वन से कहां जा सकते, बोलो. 1 से 2, 3, 4. वन से 2, 3 and 4. 3, 2, 4. 2 को भी जा सकते हैं. 4. क्या वैल्यू है 2 को? वेट 50. 50. और 4 को भी जा सकते हैं. 10. क्या वैल्यू है? 10. 10. ओके. तो ये स्टेप जो हम लोगों ने अभी देखी है ना, उसको बोलते हैं हाँ, एक्सपांड ऑन करंट नोड. क्या बोलते हैं इसको? एक्सपांड ऑन करंट नोड. एंड अपडेट डिस्टेंसेस. अपडेट डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला है. आई विल कम टू दिस फॉर्मूला. अपडेट करो डिस्टेंस मतलब क्या? पहले हमको मालूम था कि 1 से लेकर 3 तक का डिस्टेंस इंफिनिटी है. 1 से लेकर 2 का इंफिनिटी है. 1 से 4, 1 से 5, 1 से 6 सब इंफिनिटी है. अब हमें नया नॉलेज क्या क्या मिला है? 1 से 3 का डिस्टेंस क्या है? 1 से 2, 45. 45. 1 से 3. 45. 1 से 3 क्या डिस्टेंस पता चला हमको? 45. 45. 45. 1 से 2 क्या है? 50. 50. 1 से 3 45 है. हाँ, तो ये 45 क्यों लिखा हम लोगों ने? क्योंकि इंफिनिटी से कम है, राइट. Yes. और तब हमारा प्रीवियस क्या था? नील. अब हमारा प्रीवियस क्या आएगा? 45. हम लोग 3 पे आए. कहां से आए बोलो? 3 ये नोड पे आए. कहां से आए? 1 1 से आए. 1 से आए, 1 से. राइट. तो ये 1 से आए, इसका मतलब क्या होता है कि ये प्रीवियस जो है ना, ये एरे में वैल्यू हो गई 1. दूसरा 2 पे क्या आएगा? 50. तो यहाँ पे आएगा 1, 1 से. क्योंकि तो 1 से आए. और ये 4 में क्या आएगा? 10. 10. तो कहां से आए? 1. ये इंफिनिटी और ये डैश है. इंफिनिटी, ये डैश है. ये तो हो गया हमारा. तो हो सके तो हम लोग इसको ऐसे ही करते हैं 0, और कहीं से नहीं आता, ये डैश है. ओके. अब ये जो है, ये स्टेप मैं आपको बताता हूं. ये फॉर ईच एज आई जे. तो ये आई है, तो एक एज है 1 to 3. दूसरी एज क्या है? 1 to 2. और तीसरी एज क्या है? 1 to 4. 1 बराबर to ना? 4. तो इन तीनों के लिए कुछ होने वाला है, राइट. ये आई है और ये जे है. ये भी आई जे. ओके, इतना समझ में आ गया? Yes. ओके. Yes, sir. हाँ, अब ये देखो, डी ऑफ आई प्लस सी ऑफ आई जे लेस देन डी ऑफ जे. तो ये लाइन में लिख लेता हूं कि कंफ्यूजन ना हो बाद में. इफ
डी ऑफ आई प्लस कॉस्ट ऑफ आई कॉमा जे लेस देन डी ऑफ जे। अगर ऐसा है तो क्या करना है, डी ऑफ जे इज इक्वल टू डी ऑफ आई प्लस सी ऑफ आई जे। और ये अपडेट भी करना है। तो जो प्रीव है, प्रीव ऑफ जे इज इक्वल टू आई। देखो प्रीव ऑफ जे इज इक्वल टू आई। हम लोगों ने ये यहाँ पर लिखा है, पर मुझे ये आपको अल्गोरिथमिक लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है कि वो क्या है। सो ये 3 बार होने वाला है। तो सपोज ये I1 है और ये 3 है, तो डी ऑफ आई मतलब क्या है, डी ऑफ क्या, आई का वैल्यू क्या है, 1 1 तो One. डी ऑफ 1 क्या था, ये पिछला एरे देखना है आपको, पिछला एरे ओके 0. 0 है, nil प्लस कॉस्ट ऑफ आई जे, कॉस्ट ऑफ आई जे मतलब कॉस्ट ऑफ 1 कॉमा 3, 45 45 1 कॉमा 3, तो ये है 45। तो ये हो गया 0 प्लस 45, कितना होगा 0 प्लस 45, 45 45 45 होगा ओके। लेस देन डी ऑफ जे है, डी ऑफ जे मतलब डी ऑफ 3, तो ये डी है और 3 क्या है, infinity हाँ। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये इन्फिनिटी और ये 0, ये देखो ये 0 प्लस ये कॉस्ट 45, 0 प्लस 45 45, ये 45 लेस है क्या देख रहे हैं हम लोग। yes अगर 45 लेस है तो हम लोग ये जो जे है हमारा नया बना रहे हैं हम लोग अभी, जे मतलब डी ऑफ 3, तो ये हमारा डी ऑफ 3 है, तो ये डी ऑफ 3 है राइट। तो डी ऑफ 3 को अपडेट करेंगे इनके टोटल से, और इनकी टोटल है 45, तो ये अपडेट कर दिया। तो ये आपको मालूम है ये 0 था और ये 45 था, 0 और 45 45 हो गए, और ये यहाँ पर अपडेट हो गए ओके। और प्रीवियस ऑफ 3, तो ये प्रीव मैंने बोला है आपको, ये प्रीव ऑफ 3 इज इक्वल टू आई, आई क्या है हमारा 1, तो ये देखो ये अपडेट हो गया, पहले ये हाइफन था ये अब 1 हो गया, गॉट इट। उसी तरीके से डी ऑफ 1 0 है, प्लस 1 2 का कॉस्ट क्या है, 50 लेस देन ये इंफिनिटी है, देखो पुराना ये ट्रू है, तो ये इंफिनिटी को रिप्लेस कर देंगे 50 से, तो ये रिप्लेस हो जाएगा, और ये आई जो है ये प्रीवियस में चला जाएगा, आई ये यहाँ पर आ गया। तो जब जब ये अपडेशंस होने वाले हैं तब तक ये वैल्यूज हमारी चेंज होने वाली है, गॉट इट, हैव यू अंडरस्टूड दिस। yes sir yes sir और एक बार अगला एग्जांपल जब हम लोग देखेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। अब एल्गोरिथम की अगली स्टेप देखो, ये क्या बोलता है, फाइंड एन अनसिलेक्टेड नोड विद स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, उसको करंट नोड करो और उसको मार्क कर दो। मतलब अब यहाँ पर ये मार्क्ड है, ये 50 45 10 इंफिनिटी इंफिनिटी, इसमें सबसे कम वैल्यू किसकी है बोलो, 10 4 तो उसको मार्क कर दो। मतलब आपने किसको मार्क किया, 4 को, 4 और उसको करंट नोड कर दो। करंट नोड 4 है अभी, और 4 तक, 1 से लेकर 4 तक किस वेट से आए आप, 10 10 से आए, ठीक है ना। इसको मैं हटा देता हूं अभी, इसकी जरूरत नहीं है अभी।
ओके, तो अब हम लोग आ गए हैं इस 4 पर, और ये हमको ये रास्ता मिल गया है कि यहाँ तक आने का, 4 तक आने का सबसे छोटा रास्ता ये 10 वाला है, 10 से आएंगे। ओके, अब 4 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं बोलो? 5 1 2 नहीं 5 1 7 5 पे जा सकते हैं, 1 क्या वैल्यू से? 1 को जा 15 से। 1 अब 1 को नहीं जाएंगे ना, क्योंकि वो ऑलरेडी विजिटेड है। बस तो फिर एक ही हाँ, एक ही जा सकते हैं, 15 को ही तो 5 को ही जा सकते हैं ना, 10 को नहीं, 5। यस तो 4 से हम लोग जा सकते हैं 5 को यहाँ पर, राइट? 15 तो हमारा I और J, तो ये जो है ना इफ स्टेटमेंट एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, राइट? I है 4 और J है 5, करेक्ट? Yes. डी ऑफ I बोलो क्या है? 10 डी ऑफ 4 4 10 है, 10 ठीक है ना? तो हमेशा ये वैल्यू ऐड करनी है आपको, प्लस कॉस्ट ये 15, 15 10 और ये 15, तो 10 और 15 25 हो गए, 25 लेस देन ये डी ऑफ J मतलब 5 false 5 हाँ इन्फिनिटी, तो 25 इज लेस देन इन्फिनिटी है ना? यस तो डी ऑफ J को मॉडिफाई कर दो, डी ऑफ J में लिख दो डी ऑफ I अगर इन्फिनिटी है तो डी ऑफ J अब 25 हो जाएगा। और ये प्रीव पिछली बार हाइफन था, अब प्रीव क्या हो गया? I क्या है हमारा? ये I है और ये J है, राइट? I है 4, तो 4 से अगर हम लोग आए हैं तो हमको 25 वेट लगा, तो हम लोग ये 5 पे पहुंचे हैं, तो ये 10 + 15 25 वेट से 5 को आ गए, और बाकी डेटा हम लोग कॉपी कर लेंगे ऊपर से, 0 हाइफन 50 1 45 1 10 1 25 4 और इन्फिनिटी हाइफन, ये जो है ना हाइफन 1 1 1 4 हाइफन, ये प्रीवियस नाम के मैट्रिक्स की वैल्यू है। ओके, और ये विजिटेड है। अब किसको विजिट करें बताओ? 5 से आगे हाँ, तो इसमें अभी व्हाइल लूप में की सेकंड कंडीशन, सबसे कम वैल्यू किसकी है देखो, ये है सबसे कम वैल्यू, तो इसको सिलेक्ट करो, मतलब इसको सिलेक्ट करो एंड मेक दिस द करंट नोड। अब कौन करंट होगा? 5 करंट होगा, और 5 तक आने के लिए हमको क्या लगा है वैल्यू? 25। तो जैसे इस बार हम लोगों ने ये 10 ऐड किया था, अब इस बार हम लोग ये 25 ऐड करेंगे, कहीं पे भी जाना है ना, 2 पे जाना है 25 + 20 करना पड़ेगा, 3 को जाना है 25 + 35 करना पड़ेगा, और दूसरी कोई जगह जा नहीं सकते। तो आई इरेज दिस। अब ये आपको तो ये फॉर लूप का मतलब समझ में आ गया है, ठीक है? ये इफ वगैरह आपको पता चल गया, तो अब हम लोग इसको डायरेक्टली सॉल्व यस करते सर हैं। ओके, डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। फिर अब 5 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं आप बताओ मुझे? 5 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं? 2 3 2 2 and 3 3 तो 2 पे जा सकते हैं और 3 पे जा सकते हैं। ओके, अब 2 पे जा सकते हैं तो क्या वैल्यू है हमारी? 20 10 प्लस इसमें ये ऐड करना पड़ेगा ना, यस 25 और 20, क्योंकि 5 तक आने में हम लोगों को 25 यूनिट्स लगे, 25 + 40 20 ये हो गया 45। 45 और यहाँ पर क्या वैल्यू है? 50 तो पुराना अपडेट इंफॉर्मेशन, होगी हाँ, तो पुराना इंफॉर्मेशन Update अपडेट हो। अब ये 45 ये अगर अपडेट हो गया तो कहाँ से आए 45? कहाँ से आए हम लोग? 5 से 5 से आए। 5 से और ये जो दूसरा है अभी 3 वाला, ये तो ये हो गया 25 + 35,
35, 40, 60 हो जाएगा। 60 60 लेस देन 45 है Greater. क्या? ये पुराना नहीं। 45 है, तो इसका मतलब ये नया पाथ जो मिला हमको लॉन्ग ये है शॉर्ट वाला नहीं है, इसके पहले वाला ही शॉर्ट वाला है। ये जो है ना, ये 45 से आ रहा है, यही छोटा पाथ है, ये नया वाला पाथ छोटा नहीं है, तो इसको हम लोग वैसे के वैसे लिख लेते हैं, अपडेट नहीं करते। ओके, अपडेट नहीं करते। और कोई रास्ता है क्या? पाथ से कहीं जा सकते हैं क्या और कहीं? नहीं। नहीं। तो पुराना सारा डाटा जो है ना कॉपी कर लो। 0 हाइफन ये विजिटेड है, ये 10-1, ये 25-4 और ये इंफिनिटी हाइफन। ओके, अब इसमें ये सिर्फ 3 सिलेक्ट कर सकते हैं, ये 1, ये 2 और ये 3, और ये इंफिनिटी है, इसको तो नहीं कर सकते सिलेक्ट। ये दोनों 45 है, सेम वैल्यू है, तो किसको सिलेक्ट करें? लेफ्ट से शुरुआत करते हैं, उसको सिलेक्ट कर देते हैं इसको। तो कौन सा नोड सिलेक्ट किया हम लोगों ने? 2, सेकंड 2, और उसका वेट क्या है? 45। 45 अब हमको जाने लायक रास्ते कौन से हैं? 3 3 और 3 6। and 4 ये तो बाकी सिलेक्ट हो गए ना, वो जाके मजा नहीं है। ठीक है, ये 2 नए डिस्टेंस निकल सकते हैं। अब 2 से जा कहाँ सकते देखते हैं। 2 से 4 कुछ नहीं, वो फाइनल हो गया है। 2 से 3 वो भी फाइनल। हाँ, 2 से 3 बाकी है, राइट। 2 yes के लिए हमको वेट क्या लगा? 45, और ये 45 और 10 कितना होगा? 55 55। तो ये हमारा पहला 45 वही कम है, नहीं आएगा वही रहेगा। yes और क्या हम लोग 2 से 6 जा सकते हैं क्या? नहीं तो ये भी वैसे क्या वैसा आएगा, इंफिनिटी माइनस। यहाँ जा सकते थे मगर वैल्यू ज्यादा है, इसीलिए हमने पुरानी वैल्यू कॉपी कर ली। तो लेट अस गेट द अदर डिस्टेंसेस। ये 0 इंफिनिटी, सॉरी 0 नल, 45 5, 10 1, 25 4। अब इसमें क्या वैल्यू है लोएस्ट? 45। तो 3 को सिलेक्ट कर दो, 3 को सिलेक्ट किया, और वैल्यू क्या है? 45 45। तो ये लास्ट नोड है, इसको सिलेक्ट कर दिया, मतलब ये हो गया। ठीक है, अब ये इनमें से हम लोगों ने ये सिलेक्ट किया। अब यहां से ये एक ही नोड बचा है, तो क्या 3 से हम लोग जा सकते हैं 6 के ऊपर? नहीं नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। कहीं दूसरी जगह जाने में कोई मतलब भी नहीं है, तो यही वैल्यूज यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। 45, थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, मैं नहीं लिखता हूँ ये, आप अज्यूम करो ये सारी वैल्यूज ये नीचे उतार दी गई है। ठीक है, ये जो रो है ना यही है, और 6 से है ना कहीं जा ही नहीं सकते। तो अगर हम लोग ये 6 को सिलेक्ट भी करते हैं ना, तो इन्फिनिटी वैल्यू आती है यहाँ पर, तो आगे बढ़ने में कोई मतलब नहीं है। तो can you tell me what is the shortest distance between node 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, 1 to 5 और 1 to 6? 1 to 2, तो क्या करना है, ये 2 है ना, तो इसके नीचे देखना है आपको, ये लास्ट कॉलम, सॉरी लास्ट रो, ये कॉलम में लास्ट वैल्यू। तो 1 से 2 क्या वैल्यू है? 45 45 तो नोड 1 से नोड 2 तो जाने के लिए आपको वेट 45 लगेगा। 1 2 3 बोलो। 45 1 to 4 10 10 10, 1 to 5 25 25 और 1 to 6. infinity So there is no path from 1 to 6, right?
अब पाथ निकालने हमको, पाथ। अब ये पाथ निकालने के लिए जो प्रीव्यू मैट्रिक्स है ना, सॉरी प्रीव्यू एरे है ना, -5 1 1 4 हाइफन, ये हमको मदद करेगा। ओके, देखते हैं। अब ये 1 से 2 आ रहे हैं ना हम लोग, देखो, हाँ ध्यान से देखो, 1 से 2, तो 2 पर आ रहे हैं, 1 से 2 पर आ रहे हैं, तो 2 पर आ रहे हैं ना, तो 2 नंबर का कॉलम नीचे जाओ। कहां से आए, कहां से आए? 5 5 से आए। 5 पे कहां से आए? 4 5 पे 4 से आए। 4 को पूछो कहां से आए? 4 पे 1 से 1 ठीक है ना। देखो, ये मैं फिर से बताता हूं आपको, ये कंफ्यूजन हो जाता है बहुत बच्चों को। देखो उल्टा लिखते हैं हम लोग, ये 1 to 2 पाथ निकालना है मेरे को, तो मैं पहले ये 2 लिख लेता हूं और यहां देखता हूं 2 पर मैं कहां से आया, नीचे जाओ 5। फिर 5 को पूछो 5 पर मैं कहां से आया, 4 से। फिर 4 को पूछो 4 पर मैं कहां से आया, 1 से। और 1 हमारा सोर्स है, रुक जाओ, और डिस्टेंस क्या है, 45। ठीक है। एक्चुअली ये Yes, पाथ सब छुपा है। अगर आपको 1 2 3 निकालना है तो यहाँ 3 दिखता नहीं है, तो ये तो इसका आंसर हो गया। इसका आंसर, क्योंकि मेरे को यहाँ 3 नहीं दिख रहा है, मैं इसका आंसर नहीं लिख पा रहा हूँ। और 1 to 4 का पाथ क्या होगा, ये देखो 1 to 4 दिया है यहाँ पर। 1 to 5 का पाथ क्या होगा, 1 4 5 दिया है यहाँ पर। और 1 to 6 तो इंफिनिटी है, तो उसका कोई पाथ ही नहीं होगा। अब ये 1 to 3 का निकालते हैं, तो 3 तक निकालना है ना, तो 3 लिख लेते हैं, 3 को जाते हैं और 3 को पूछते कहां से आए, कहां से आए, 1 से। 1. मिल गया आंसर। गॉट इट, समझ में आ गया? Yes. Yes, sir. Yes. और एक एग्जांपल देखें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। Yes sir. ओके, Yes, Yes sir. sir. वो एल्गोरिथम को 2 मिनट बाजू में रखते हैं और हमारा कैलकुलेशन करके देखते हैं। ठीक है, होगा वही एल्गोरिथम के हिसाब से ही हो रहा, मगर हम लोग ये आई जे ये ऐसा नहीं देखेंगे, डायरेक्ट आंसर देखेंगे। तो ग्राफ बनाना पड़ेगा, एक ग्राफ मैं लेता हूं। यहाँ पर है नोड ई के ऊपर है बी, और ईबी का डिस्टेंस है 50, 50। फिर बी से एफ नोड है यहाँ पर, और एफ है 10, बी एफ है 10। नीचे एक ए और जी नोड है, एक ए और एक जी नोड है। तो बी से ए से बी जाएगा 20 से, ये जाएगा 20 से, और ई से जी जाएगा विद द वैल्यू 30। ए से जी 90 और उल्टा 20। बोला, ठीक है। और एक नोड है यहाँ पर डी, डी है 80, और डी टू जी है 20, और एफ के बाजू में एक नोड है सी, और नीचे एक है एच। अब ये एफ जो है, इससे एक एरो जाएगा डी पर और एक सी पर।
तो डी पे जाएगा 10 और सी पर जाएगा नहीं, डी पर जाएगा 40 और सी पर जाएगा विद द वैल्यू 10। सी से एफ पे जाएगा विद द वैल्यू 50, एफ विद द वैल्यू 50 और सी टू एच रहेगी वैल्यू 20। और ये देखो ये टू वे है, ये टू वे है, यहाँ पे गलती हो जाएगी हमारी, हो सकती है, तो एवरीबॉडी पे अटेंशन, गड़बड़ हो जाती है, ये टू वे है। तो काउंट करो ये कितने एजेस है। ट्वेल्व 13. 13 है। 13 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वैल्यू चेक करो। 50 ईबी की वैल्यू 50 बराबर, ई सोर्स है, बी Yes. बी वर्टेक्स, एरो बी की तरफ जा रहा है, ठीक है। ई बी 50, बी एफ 10, एफ सी 10, yes सी एफ 50, सी एच 20, सी डी और डी सी 10, एफ डी 40, ए बी 20, डी जी 20, ए जी 90, जी ए 20 और एडी 80, ई जी 30। करेक्ट? क्या ये वैल्यूज मैंने जो बोले करेक्ट है? yes Yes. yes sir. ओके, अगर मैंने जो वैल्यूज बोले वो करेक्ट है तो फिर हमारा आंसर गोल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से करेक्ट आना चाहिए। सो सबसे पहले स्टेप क्या थी हमारी, मैं अभी इंक चेंज कर देता हूँ। हाँ, सोर्स नोड देना source पड़ेगा। node तो यहाँ ए है क्या? हाँ ठीक है, ए को सोर्स नोड कर देते हैं, ये ए है यहाँ पर। आई चेंज द इंक, यहाँ पर ये गिवन दे देता हूँ मैं, ये ए इज गिवन, इट इज द सोर्स नोड, ये ए सोर्स नोड है। तो सबसे पहले क्या करना है, सोर्स नोड, ये 1 2 3 4 लिख दिया क्या मैंने? ओके, चलो इसको हम लोग ABCD कर देते हैं। ओके, ये ए है, तो ऊपर लिख देता हूं मैं, ठीक है, ABCD EFG। ए को ना भी लिखे तो चलेगा, पर ये लास्ट में H लिख देता हूं, ठीक है, H। ए है, B है, C है, D है, EFGH। मैं क्या करता हूं, ये ए को लिखता ही नहीं मैं, क्योंकि ए का वैल्यू 0 ही रहता है, राइट? सोर्स नोड yes ए का sir. 0 ही रहता है, तो नो नीड टू राइट इट। तो ये है बी, ये है सी, ये है डी, ई एफ जी एच। और इनिशियली सब वैल्यूज हमको मालूम है क्या है, इन्फिनिटी है, infinity Infinity. इन्फिनिटी है। सो ए 0 होगा, ठीक है ना, तो ये सब तब तक इन्फिनिटी होगा। और उसका प्रीवियस क्या होगा, नल होगा। null तो नेचुरल है कि हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे, a ए और विद द वैल्यू 0। 0 ये जो है ना, ये 0, ये डी पर जाते हुए 0 + 80 ऐसा करेंगे। ओके, अब ए से कहाँ Yes. कहाँ जा सकते बोलो, ए से कहाँ कहाँ पे जा सकते बोलो। b b j D. EG तो बी आएगा, ये देखो ये बी आएगा, ये मैं हटा दो, ठीक है, ये टाइम बचाने के लिए मैंने किया, मगर वो नुकसान हो गया, क्योंकि ये एग्जाम्पल क्या आने वाला था मालूम नहीं। तो ए से बी का वैल्यू 20 इन्फिनिटी से छोटा है तो लिख दिया, और ये ए से आया। फिर नेक्स्ट है डी, 80 18. g j 90 90 डी से आया। और कुछ है? नहीं 2 3, ये तो इनकमिंग है। और ये बाकी क्या रहेगा, इन्फिनिटी हाइफन इन्फिनिटी infinity नल, इन्फिनिटी नल। ये ए होना चाहिए ना, ये ए, ठीक है।
अब क्या करेंगे बोलो? स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट जो है 20 उसको सिलेक्ट 20 करो, मतलब बी नोड, राइट? और ये वैल्यू क्या है उसकी? 20 20। 20. तो अब क्या करना है, ये तो मार्क हो गया हमारा। अब आएगा बी। तो बी हम्म। का हमेशा 20 ऐड करके लिखना है कुछ भी, मतलब ये 20 + 10, राइट? यस यस तो बी से कहाँ जा सकते हैं? एफ ओनली F. F. हाँ, तो वो 20 + 10 30 30 होगा। 30. F 30. F पर 30 कहाँ से आए? B बी से. B से. अपडेट हो गया ना, तो ये वैल्यू यहाँ लिखनी है आपको अपडेट के वक्त। और जब अब कोई दूसरा नोड नहीं है तो पुराना सब कॉपी कर लेना है आपको। 20A सिलेक्टेड है, इंफिनिटी हाइफन 80A इंफिनिटी हाइफन 90A इंफिनिटी नल, जो है हाइफन या नल। ओके, अब क्या सिलेक्ट करना है? एफ 30 30. तो F को सिलेक्ट करो, तो F लिखो और ब्रैकेट में 30 लिखो। तो यहाँ 30 लिखो। कितनी जगह जा सकते हैं? डी C सी and D. C, तो सी पर क्या, कितने वैल्यू से जाएगा सी पर? सी 40. 40 40। कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग ये पढ़ते हैं और जब एग्जाम आती है ना, तब ये 30 को ऐड करना भूल जाते हैं। हमको लगता है 10, बस मस्त वे की 10 लिख देते हैं, फिर ऐसा नहीं करना है। ओके, सो सी पर 40 तो पहले इंफिनिटी है, ये 40 अभी नया वैल्यू आ गया है, अपडेट करना है तो ये एफ लिखना पड़ेगा, अपडेट हो रहा है। दूसरा है डी पर, क्या वैल्यू आएगी डी पर? 70 70 तो ये 80 पड़ा या 70? 70. 80 80 पड़ा है, बड़ा है 70 अपडेट होगा 70 अपडेट करना Update. पड़ेगा, 70 एफ। जब हम लोग ये वैल्यू चेंज करते हैं ना, तो ये भी चेंज हो जाता है। तो दो ही पॉसिबल रास्ते थे, बाकी का कॉपी कर लो। 20A इंफिनिटी नल, 30B 90A इंफिनिटी नल। तो ये पहले सिलेक्टेड था तो इसको स्क्वायर कर दो, मतलब कंफ्यूजन नहीं रहेगा अगली बार सिलेक्ट करते वक्त। तो अब क्या सिलेक्ट करें यहाँ पर? 40 70 90 40 अप C40. सी 40 सी 40 C40. 40 70 50 90। तो ये C40 C है तो मार्क कर दिया, करंट नोट कर दिया उसको, और उसका डी ऑफ आई क्या है? 40। 40. अब सी से कहाँ जा सकते देखो? सी से दो जगह जा सकते हैं, एफ पे H. और एच पे। C. सी का वैल्यू 40, तो वो एफ पे जाएगा 90 से, पर एफ हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो एफ पे जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, यस और एच पे जाएगा, एच पे जाएगा विद वैल्यू व्हाट? 20 एंड 60 60 एच पे जाएगा 60, पर ये इंफिनिटी है तो हमारा नया वैल्यू छोटा है, तो लिख लेंगे आए कहाँ से, तो सी से। और दूसरा कुछ नहीं, ये पुराना वगैरह सब कॉपी कर लो। 20A D. एफ सर D पण लेगा ना. डी भी है क्या? D. अरे हाँ, ये देखो मैं हाँ, बोला D. था, ये हम लोग भूल जाएंगे, हाँ. राइट? 2 error. 40 + 10 50. 50 50. तो ये 70 बड़ा वैल्यू है और 50 छोटा वैल्यू है, तो 50 कहाँ से आए? सी सी सी। ओके, ये एफ है। ओके, दिस इज एफ। फिर ये ई पे नहीं आ सकता, सी से ई नहीं जा सकते ना, और ये नहीं सिलेक्ट नहीं. 30B 30B, ये 90A जी पर पॉसिबल नहीं है, तो वही रहेगा 90A। अब ये तीन वैल्यूज है हमारे पास, 50 90 और 60। ये इन्फिनिटी को तो हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि इन्फिनिटी बहुत बड़ी वैल्यू होती है। क्या सिलेक्ट करेंगे? डी डी 50 डी 50 डी ब्रैकेट में 50 इसको सिलेक्ट करेंगे, तो ये डी 50 है। तो डी से सी पे जा सकते हैं, मगर सी का काम तो हो गया हमारा। अब हमें सिर्फ डिस्कस करना क्या है, डी ई जी एच। तो डी से हम जी लोग
अरे ये तो स्क्वायर कर दो, डी नहीं बोलना है ना, ये हो गया ना हमारा, सिलेक्ट हो गया। अब सिर्फ जी एच की बात करनी है, तो ये एच तो जी। नहीं जा सकती डी से, और क्या हम जी से जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं। 50 जी। प्लस 20 70, 70। और यहाँ का वैल्यू क्या है 90, तो क्या हमें नया वैल्यू मिल गया है? यस। यस। और कहाँ से आए? डी से आए। बाकी कॉपी करना पड़ेगा, 20A 40F 50C इंफिनिटी हाइफन 30B 60C, और जो स्क्वायर किए हैं उनको स्क्वायर कर दो जरा, ठीक है? ये सिलेक्टेड है तो इनको स्क्वायर कर दो। अब ये दो वैल्यू में से कौन सा वैल्यू छोटा है? एच छोटा है, 60H। एच। तो मार्क Yes. कर दो एच को 60। पर हम लोग मालूम है यहाँ से कुछ नहीं जा रहा बाहर, एच से कोई आउटगोइंग एज नहीं है, तो ये डेटा वैसे क्या वैसा रहेगा। ये सब 20A 40F 50C इंफिनिटी हाइफन 30B 70D 60C, ये बी है, और ये सब स्क्वायर है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। और अब आप क्या सिलेक्ट कर सकते हो बाद में? जी, जी। राइट? तो ये जी सिलेक्ट करो, जी लिख दो यहाँ पे विद द वैल्यू 70, ये भी सिलेक्ट हो गया। अब जी से कहीं जा सकते हैं क्या? देखो अनविजिटेड नोड, सिर्फ ई अनविजिटेड है, तो वहां तो रास्ता ही नहीं है, और बाकी जहां जा सकते हैं जी से वो ए है, सिर्फ ए है। और ए तो ऑलरेडी हमारा साइकिल फॉर्म। सिलेक्टेड नोड है, ऑलरेडी सिलेक्टेड है, वो तो सोर्स ही है खुद। यस। ये विजिटेड है ना, ये देखो टिक किया है, ये विजिटेड है, तो ये सब वैल्यूज कॉपी हो जाएगी नीचे। 20A 40F 50C, फिर ये तो इन्फिनिटी है, 30B 70D, ये भी है, और 60C। अब कोई है छोटा नोड यहाँ पे? छोटी वैल्यू है? कोई नहीं है, राइट? आप बोलोगे कि ये ई, तो वो छोटे वैल्यू थोड़ी है, इन्फिनिटी सिलेक्ट ही नहीं करते हम लोग। ओके, सो बोलो पहले मुझे वेट्स बताओ, ए से लेकर बी तक, ए से सी, ए से ई, एफ, जी और एच। चलो ए से बी क्या वैल्यू है? 20। ए से सी, 40। 40. 40। ई, 50। एफ, ई तो इन्फिनिटी है, राइट? इन्फिनिटी। 30। ए टू एफ, 30। 30. जी 70। और ये 70, 60। चलो हमारे को 60. कोई पाथ बताओ, पाथ बताओ। अभी पाथ आपको कैलकुलेट करते आता है पाथ? ए टू बी बताओ पहले। AB, ये पहले बी का डिस्टेंस लिख लो, बी, ये बी का डिस्टेंस क्या है? 20। कहां से आए बी पर? ए। AC, ऐसे. ए ऐसे. टू, ओके, ए टू बी। अब दूसरा सी का पाथ बताओ, सी का पाथ बताना है। 40 वेट से आ रहे हैं, एफ। F. एफ को आए हैं, सॉरी एफ से आए हैं सी पर। अब एफ पर कहां पर आए, कहां से आए? B, बी। B से, बी से। B और से. देखो ये पीछे देख लेना है कि बी ए। पर कहां से आए? ए से। A से, हाँ यहाँ अगर मिल गया ना, अभी ये देखो यहाँ पर ए भी मिल गया आपको, ए एफ भी मिल गया और ए सी भी मिल गया, राइट? तो हमको फायदा अभी ए एफ का होने वाला है यहाँ पर, ये ए एफ, ए बी एफ लिखना है सिर्फ। चलो डी का बताओ, डी तक क्या वैल्यू से सी। आए? C. डी, C से. सी। D, डी से आए। एफ। अब C, सी पर कहां से F. आए? तो ये दिखा, F. दिखा F, एफ बी ए। एफ बी ए। एफ बी ए। ए, B. यहाँ से भी निकाल A. सकते हैं, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा। ओके, नेक्स्ट इज ई। तो
पाथ ही नहीं है। ठीक है बोलो। नहीं F का इन्फिनिटी एफ ए बी एफ A B BF. F APF दिया है। G G का बताओ। 70 है। जी D टी D से डी सी एफ बी ए D से G आया और D कैसा है देखो, ये यहाँ पर है, राइट। सी एफ बी ए बहुत लंबा पाथ है। C है, F है, B है और ये A है। ये एरो, ये एरो, ये एरो, एरो, ऐसा G हो गया। H बोलो। C A B F C C सी H एफ बी ए क्या मिल जाएगा? F एफ बी ए B A सो अगर कोई भी एक ऐसा ग्राफ अगर आपको दिया होगा तो क्या आप ये एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं? कैन यू सॉल्व ऑन योर ओन नाउ? yes sir तो एज अ Yes, होमवर्क sir. आई टेल यू इज, और पहले क्या करो, टेक अ प्लेन पीस ऑफ पेपर, ये जो डायग्राम है ना पहला वाला, ये ड्रॉ कर लो और ये एग्जांपल खुद के दिमाग से सॉल्व करने की कोशिश करो। सॉल्व होने के बाद आपका आंसर और ये यहाँ पर स्लाइड पे का आंसर सेम आता है क्या, वो वेरीफाई करो। फिर ये दूसरा वाला जो एग्जांपल हम लोगों ने लिया है वो लो, सॉल्व करके देखो और फिर देखो कि ये आंसर और आपका आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, ये विजिट करना, ये प्रीवियस का मैट्रिक्स एरे जो है वो मेंटेन करना, और ये पाथ कैसा ढूंढना है आपको, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो मैंने तो आपको टेक्निक बताई है, अगर समझ में नहीं आएगी ये टेक्निक तो फिर से क्या करना पड़ेगा, आपको वीडियो फिर से देखना पड़ेगा, इलेबोरेट हो जाएगा 2 या 3 बार, उतना पोर्शन ही आपको देखना है, सब नहीं देखना है। ओके, तो सब चीजें क्लियर हो जाएगी। तो इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज आस्क मी।